اپنے بلاوے کی پہچان کریں. تو آئیں مرکزی حوالہ جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. جس کو مل گیا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. ہاللویہ. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے چوکیدار دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام لے کر بلا کر باہر لے جاتا ہے. جی ہاں، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا تو ہے، ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی کیونکہ وہ ہیں، اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گے، نہ جائیں گی، بلکہ اس سے بھاگیں گے، بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. نہیں پہچانتی. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب ایک آواز میں کہیں گے آخری آیت بڑی دلچسپ ہے. آپ جب اپنے بچوں میں ہیں یا ایک ٹیچر ایک سکول کے اندر ہے تو اسے پتا ہے کہ جب ایک بچے نے مجھے آواز دی ہے تو وہ فوراً سے اس بچے کو پہچان لیتی ہے. یا ایک باپ اور اس کے 7-8 بچے ہیں تو ان میں سے اگر ایک بھی اسے آواز دے گا تو فوراً سے اسے پتا چل جائے گا کہ میرے فلاں بچے نے مجھے پکارا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے جانچتا ہے، اسے پرکھتا ہے اور اسے پہچانتا ہے. اسی طرح یہاں پر لکھا گیا ہے کہ غیروں کی آواز نہیں سنتی. اگر میں اپنے بچوں میں سے کسی کو آواز دوں تو فوراً ان کو پتا چلے گا کہ دروازے پر پاپا ہیں. لیکن اگر میری جگہ کوئی اور آواز دے، یرمیا دروازہ کھولو، تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے بچے دروازہ کھولیں گے. یا آپ کے گھر کے جو رول ہیں، کوئی اجنبی جب دروازے پر دستک دے، آپ کے کوئی اپنے کی آواز اور آواز میچ نہ کرے تو کیا آپ اس کی آواز سنیں گے؟ دروازہ کھولیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کھولے گا، کیونکہ اس کی بھیڑیں جو ہیں اس کی آواز پہچانتی ہیں. تو پہلی بات کہ جو بلوائے گئے ہیں، جو چنے گئے ہیں، جو ناظیر ہیں، وہ خداوند کی آواز کو پہچانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اگر میں بلوایا گیا ہوں، اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو خدا نے مجھے بلایا ہے اور خدا ہی نے مجھے بھیجا ہے، تو یقیناً وہ اس کام کو کرے گا. جو بلوایا گیا ہی نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے خدمت میں آ گیا ہے، وہ ابلیس کی آواز پر لبیک کرتا ہے، کیونکہ اس کے بلوانے والے کی مرضی ہی نہیں ہے. وہ خدا کی آواز اور ابلیس کی آواز کو پہچان نہیں سکتا ہے. ابراہیم کا بلاوا جب ہوا، عبرانیوں نکالے میرے ساتھ، عبرانیوں 11 باب اس کی 8 آئی لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر، کیا لکھا جی؟ حکم مان کر اس جگہ سے چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا. جب اس کا بلاوا ہوا تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. یہ جانتا تھا کہ جو مجھے بلا رہا ہے
وہ خدا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، ایمان ہی کے سبب سے۔ ہم شروع میں بڑا ایمان رکھتے ہیں، ہمارا جب بلاوا ہو جاتا ہے تو خدا ہمیں اپنے کھیت میں بلاتا ہے کہ آ بھائی اب تو میرے کھیت میں کام کر، لیکن ہم سن کے بھی انسنے ہو جاتے ہیں، اپنی اس ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جو بلوائے گئے ہیں کہ ہمارا کام خدمت کرنا ہے۔ بلوائے کس لیے گئے ہیں؟ بلوائے جانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد، خدا کے کھیت میں کام کرنا۔ جو خدا آپ سے چاہتا ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کا بلوایا جانا بیکار ہے۔ ابراہام کو بلوایا گیا اس وعدہ کی گئی سرزمین کے لیے، تو ابراہام نے پوچھا نہیں ہے کہ خداوند کہاں جانا ہے، کس رستہ پر جانا ہے، کب جانا ہے، کیوں جانا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، نکل پڑا ہے اس کی خدمت کے لیے۔ یہاں پر مجھے کچھ یاد ہے کہ بدھ والے دن شاید ہم لاہور تھے، بلاوا تھا، خدا نے وہاں پر اپنے جلال کے لیے خرچ کرنا تھا اور کیا، اور غیر قوموں میں کیا۔ تو کیا بلاوا صرف میرا ہی ہے؟ میرے علاوہ کتنوں کا بلاوا ہے جو چرچ کے اندر ہے؟ کسی کا بھی نہیں، ایک کوئی ہے، باقی کوئی نہیں۔ شرم آ رہی، ہاتھ کھڑا کرنا گیا نا، جو مسا کیے گئے ہیں وہ بلوائے گئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے مقصد نہیں کی گئے، بلوائے گئے ہیں۔ اب ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں، شرم آتی نا؟ پوچھا کرو جڑے بلوائے گئے نے، جڑی خدمت لی نے، آج وہ پیچھے چلے گئے نا، اگے آندے آندے پوچھا کریں، شاباش۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں تو بلوائے جانے پر لاہور چلا گیا ہوں، خدا نے وہاں پر غیر اقوام میں کام کیا ہے، تو پھر بدھ بوٹنگ کیوں نہیں گئی؟ کہاں گیا آپ کا بلاوا؟ پھر سوال ہی بندہ، پار صاحب تسی سانوں دس کے نہیں گئے، ہے نا؟ پار صاحب تسی دسیا نہیں کہ چابی کدے کول ہے، دسیا نہیں ساؤنڈ کڈنا کہ نہیں، دسیا نہیں چرچ لگنا کنے بجے۔ ابراہیم نے کتنے سوال کیے؟ کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ وہ نکل پڑا خدمت کے لیے، اسے نہیں پتا کہاں پر جانا ہے، منزل کیا ہے، کرنا کیا ہے، بس خدا نے کہا چل، اور وہ چل پڑا ہے، رکا نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہوا۔ بڑی مشکلات دیکھی ہیں اس نے، لیکن یہ چلتا رہا ہے۔ اس نے اپنے بلاوے کی پہچان کی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا، اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہے۔ تو مجھے لگتا کہ شاید آپ کو اب تک پہچان نہیں ہوئی ہے۔ میں غصہ نہیں کرنا، میں تہاڈی کانٹ چھانٹ کرنا، زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام شاید یہیں پر سٹاپ ہو جائے گا، شاید یہیں پر سٹاپ ہو جائے گا۔ یسوع چلا گیا، لیکن میں جاتا ہوں، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ بس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ تو شاگردہ نے کی کیا؟ جا کے گھر سو گئے، ہاں سو گئے نا، چھوڑ دیا سب کچھ، بپتسمہ دو، وہ تو خدمت تھی۔ شاگردوں نے پوری دنیا کو جیتا ہے، ایمانداری سے، وفاداری سے، جو یسوع نے سونپ کر گیا تھا وہ سب کام انہوں نے کیا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں کلام پھیلا ہوا۔ ہم اپنے چرچ میں نہیں ملا رہے، کوئی بات نہیں، لگن والی دوائی بہت کم کر دی۔ چلیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ ایک میرا اور پوائنٹ ہے، اپنے بلوائے پر ایمان لائیں اور اسے قبول کریں۔ پہلا تھا بلاوے کی پہچان، اور دوسرا اگر آپ بلوائے گئے ہیں تو اس پر ایمان رکھیں اور اسے قبول بھی کریں۔ عبرانیوں 11واں باب، سوری یہ ہمارا ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ پہلا پترس 2 باب 20 تا 21۔ اپنے بلانے والے کی پیروی
और फर्मा बरदारी करें। पहला पत्रस है, दूसरा बाब, इसको ठीक करें, और उसकी 20वीं ता 21वीं आयत। जी पढ़े जरा। इसलिए कि हाँ जी, अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए अगर तुमने गुनाह करके मुके खाए और सब्र किया और सब्र किया, तो कौन सा फख्र है? कौन सा फख्र है भाई? गुनाह भी कीता ते मार भी खानी, वो तो फिर खानी पैनी सी ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आगे बढ़े जरा। हाँ, अगर नेकी करके हाँ, दुख पाते अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो और सब्र करते हो, तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। फिर ये फर्मा बरदारी है, फिर ये पैरवाई है बुलवाए जाने के लिए कि तुम नेकी के लिए दुख सहते हो, तो फिर ये खुदा को पसंद है, खुदा को पसंद है। मैं और शोक था, कहीं विजिट पे गए तो आए हैं, आते ही सिर्फ गाड़ी खड़ी किया घर में, तो कहीं जाना था, तो बुआ ताड़ी कहती वो ठहर जो साव ही ले लो। मैं कहा नहीं, चलिए जिस काम में बुलाए गए हैं वो काम करना ही करना। फौरन से हम निकल पड़े। तो यहां पर भी उसने कहता है कि नेकी करने के लिए अगर तुम दुख सहते हो, तो फिर ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। एक तालिब इल्म ना पसंदीदा है मेरा, कहता फारिस साहब इन्नी दूर आए, उधर रात मोटरसाइकिल आ जाती, गर्मी है, कि तुहानू अज कैरी डब्बा ले लेना चाहिए सी। मैं कहा यार जेड़ा अपनी जान नू यीशु लिए बचाएगा ना, वो खोएगा। आप यीशु की खातर अपने बदन को जितना दुख देंगे, लिखा है कि वो पसंदीदा है, वो पसंदीदा है। आगे बढ़ा, इसको मुकम्मल करें। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलवाए गए हो? किस लिए? किसी के लिए? हाँ, 20वीं आयत का आखिरी साहब। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हाँ जी, और सब्र करते हो, तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। हाँ, और तुम इसीलिए बुलवाए गए हो। सब्र करो, दुख सहो, बर्दाश्त करो, इसीलिए तुम बुलवाए गए हो। आगे बढ़े। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर, मसीह ने भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाया था जी, तुम्हें एक नमूना दे गया है। हाँ जी, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ये काम है, ये पैरवाई करनी है हमने उसकी, ये फर्मा बरदारी करनी है कि जिस तरह उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे हैं, और ये खुदा की नजर में पसंदीदा है कि हम भी उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, उनके लिए दुख सहे, तो फिर ये खुदा की नजर में पसंदीदा होगा। फिर ही बुलवाए जाने की फर्मा बरदारी और पैरवाई करते हैं। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस, अपने बुलाने वाले की मानद बने। क्या है जी? अपने बुलाने वाले की मानद बने। पहला पत्रस पहला बाब 15 आयत, बड़ा मशहूर ये हवाला है। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। किसमें पाक बनो? अपने सारे चाल चलन में। देखना, सोचना, सुनना, बोलना सब मसीह जैसा हो, क्योंकि बुलवाए तो उसी के नाम से गए ना। तो उसने तो बड़ी जमायत के अंदर ये दावा किया था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। आज कोई दावा नहीं करेगा कि मेरी सोच पाक है, कोई नहीं दावा करेगा। हाँ? उठ के भज जाना। अगर इबलीस अटैक कर रहा वा और कर रहा है तो अकेला दौड़ जाने असीं कि नहीं, इबलीस ने बड़ा मैनूं घूर के देख लिया, वो तो मेरे तो डोरियां पाउण दिया सी, मैं उठ के भज गया है कि मैं फंस ना जाऊं। ये ईमान है हमारा। लिखा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, वैसे तुम भी पाक बनो। जब पाक है तो फिर बुलावा है। अगर सोच गंदी है, ख्याल गंदा है, आंखें गंदी है, जुबान गंदी है, तो आप नहीं बुलवाए गए।
आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, मेरे पास बड़ा इल्म है, बड़ा नॉलेज है, लेकिन आपकी सोच गंदी है, ख्याल गंदा है, बुरी जबान और अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं सब गलीज और बहुदा है, तो फिर आप मसीह की मानद नहीं है। फिर ये कलाम आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी सारे, ये देखे ना, ये सारे ना छोड़ो, सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। इसलिए पाक हूं। जिसने बुलाया है वो पाक है, और उसका बुलाने वाला भी पाक होना चाहिए। बुलवाए तो गए हैं, लेकिन अब अपने बुलावे को उसकी मानद पाक कर रहे हैं कि जब मैं चुनी गई हूं, चुना गया हूं, बुलवाया गया हूं खिदमत के लिए, तो अब जिस तरह मेरा बुलाने वाला मुकद्दस है, पाक है, दावे करता है, उसी तरह अब मुझे भी उसकी मानद बनना है, पाक होना है। सोच ख्याल सब कुछ, सारा चाल चलन लिखा है। सारे चाल चलन में जब हम पाक हो जाएंगे तो फिर हमारा बुलावा जो है तब दुरुस्त होगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा थेसलोनिकियों, अगर आप बुलवाए गए हैं तो अपने आप को साबित करें। क्या है जी? अपने आप को बुलवाए जाने के लिए साबित करें कि मैं बुलवाया गया हूं, मुझ पर खुदा की मोहर है, मैं चुना गया हूं, मुझे खुदा ने चुना है। क्योंकि लिखा ना कि तूने नहीं बल्कि, तो उसको प्रूफ करेंगे। थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों पहला बाब 11वीं आयत। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए, गौर से सुनिएगा, इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने, हाँ जी, और नेकी की हर एक ख्वाहिश, हाँ जी, और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। समझ आइए, फिर पढ़ेगा। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए, को ये खत लिखा गया है, दूसरा खत है जी। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने, और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के, इस बुलावे के लायक जाने। कैसे कैसे साबित करेंगे कि बुलवाए गए हैं? कैसे प्रूफ देंगे कि मुझे खुदा ने चुना है? कैसे दूसरा शख्स आपको पहचान सकेगा कि आप खुदा की तरफ से हैं या इब्लीस की तरफ से? कैसे जज कर सकता दूसरा बंदा? नहीं, जवाब तो खुद ही नहीं दे देता है। नेकी की हर एक ख्वाहिश, नेकी की ख्वाहिश रखनी, भला करना है दूसरों का, मददगार के लिए मदद को पेश करना है, जरूरतमंद के लिए उसके साथ खड़ा हो जाना है, और दुआ भी साथ साथ है जी। आगे पढ़े जरा। और ईमान के हर एक काम को, हाँ जी, कुदरत से पूरा करें। कुदरत से पूरा करें। आपने प्रूफ करना है अपने आप को दुरुस्त साबित करके। आपके नेक अमाल, आपके अच्छे काम, आपकी नेकियां दूसरे तक जब जाएंगे तो वो शख्स जानेगा कि ये बंदा जो है ये मुनफरद है, यकीनन ये बुलवाया हुआ है। एक मिसाल हमने सीखी थी, शादी वाली मिसाल। जब बादशाह ने कहा था कि सब लोग शादी की ज़ियाफत में हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी पोशाक पहन कर गए थे, अच्छी पोशाक पहनकर, और उनका बुलावा था कि ये शादी में बुलवाए गए हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स था जिसने अच्छी पोशाक नहीं पहनी थी, तो क्या हुआ था? उसे उस ज़ियाफत से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो दूर से नजर आ गया था कि ये बुलवाया गया नहीं है, इसका ड्रेस अच्छा नहीं है।
तो अगर हम ड्रेस से हटके कामों पर गौर करते हैं तो हमारे काम बता देते हैं कि नहीं भाई, ये शख्स रूहुल कुद्दस का चुना हुआ नहीं है। अगर मुझ पर तेल डालकर मुझे मसा कर दिया गया है, अगर मैं खिदमत कर रहा हूं, लेकिन दूसरा शख्स जब मुझे देखता है तो मैं हुटिंग करता हूं, तीसरा शख्स देखता है तो मैं गालियां निकालता हूं, चौथा शख्स देखता है तो सिर्फ मैं सोता रहता हूं, दुआ नहीं करता, तो फिर मेरा बुलवाया जाना नहीं है। हर एक काम में आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो, फिर पता चलेगा कि आप बुलवाए हुए। मसीह ने आपको चुना है, मसीह ने आपको खड़ा किया है अपने लिए। आपके काम जाहिर करेंगे कि आप पर मोहर है या नहीं है। संजीदा हो जाएं, संजीदा हो जाए। जब आप संजीदा हो जाएंगे तो फिर हुल्लड़बाजी तो खत्म हो जाएगी, जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि इंसान जो बातों बातों में बोलते हैं बार बार, लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है। बार बार इस आयत को रिपीट करते हैं लेकिन अपने ऊपर कभी इसको लागू नहीं किया। बातों बातों में ऐसे बहुधा अल्फाजों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे लिए गुनाह का बायस बन जाते हैं। सो इसलिए कोशिश करें, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका बुलावा नामुकम्मल है। आमीन। आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाला इसके बाद क्लोज करेंगे, बत्ती का भी कोई पता नहीं। दूसरा पत्रस है, पहला बाब 10वीं आयत। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करें। इसके बाद क्लोज करेंगे। हवाले तो हैं अभी मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं है। पस ए भाइयों, गौर से सुनिएगा जी। पस ए भाइयों, हाँ जी, अपने बुलावे और आमीन। पस ए भाइयों और बहनों, हाँ जी, अब पढ़ें। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की, हाँ जी, ज्यादा कोशिश करो, ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। कभी ठोकर फिर ठोकर नहीं खा सकते, आप गिर नहीं सकते। जरा कहते ना कि पार साहब होते मेरे को दुआ भी नहीं होती, वो ठोकर खा चुका है, वो गिर चुका है, उसने कोशिश नहीं की अपने आप को स्टैंड रखने की। जो बंदा पहले हफ्ते में 2 दफा 3 दफा रोजा रखता था, उसने रोजा रखना छोड़ दिया है। जो दिन में 3 दफा दुआ करता, वो दुआ कर नहीं पाता, वो ठोकर का बायस हो चुका है, वो गिर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने कोशिश नहीं की अपने आप को साबित करने की। मैं एक जगह पर गिरा, 4 से 5 साल पहले की बात है। इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हो, फरिश्ते भी गलतियां कर जाते हैं। बड़ा खास फरिश्ता है जिसको खुद खुदा ने सोने से बनाया, स्टोन जड़ दिए उसके ऊपर, उससे खता हुई तो हम क्या। गिर गया, 5 साल पहले की बात है। इब्लीस मेरे दिमाग में बात डाला, नो भाई जिन्नी मर्जी दुआ करी जा, ए बदरू नहीं जाना, तू तो गुनाह कर लिया, तू तो चोरी की सी। मेरे अंदर वो ख्याल घूम रहा है, मैं दुआ करी जा रहा हूं, लेकिन वो पीछे से मुझे आवाज दे, नहीं ऐ नहीं होना, ए नहीं होना। नहीं होया, नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो मुझे गुनाह मेरा याद हुआ, मेरा ईमान छोटा पड़ा। 3 से 4 दिन तक मेरे अंदर कश्मकश चलती रही कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो गिर गया हूं। फिर खुदा ने मुझसे बात की कि मैं आया किस लिए हूं, गिरे हुओं को उठाने के लिए। मैं फौरन से दुआ में ठहरा, मैं बड़ा रोया, मैंने कहा खुदा ये गुनाह मुझसे हुआ है, तो मुझे माफ कर। खुदा ने मुझे तसल्ली दी, मैं तेरे साथ, तूने नहीं बल्कि मैंने चुना है। तो फिर उसके बाद तालिब इल्म भी ये कहने लगे, और सब चर्च से केस को नहीं होंगे, चर्च से केस को नहीं, ये तब की बात है, 4 साल पहले की बात है। केस आने शुरू हुए, उसके बाद ऐसे आए कि गैर कौमावी पता नहीं कित्थों कित्थों आनियां शुरू हो गई।
जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि खुदावन तूने मुझे चुना है, अब तू ही मुझे जोर देगा, तू ही मुझे कुव्वत देगा, तू ही मुझे उठाएगा, तो यकीनन वो आपको उठा कर आएगा। ये कोशिश है। लेकिन जब आप कोशिश में सुस्ती करेंगे तो फिर नहीं आप बहाल हो सकते। जब आप कहेंगे को मैं गिर गया, हो नहीं, हो ही नहीं सकता, फिर आप पीछे 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 जाते आखिरी लाइन से चले जाओगे। आखिरी नहीं किसी ने क्या तलाश में तो बिल्कुल नहीं ना क्या। कोशिश करें। अगर आपको इब्लीस रूहानी तरक्की के लिए रोक रहा है तो अपने आप को साबित करें कि खुदावन तूने मुझे चुना है, तू मुझे जोर दे, तू मेरी ढाल बन, तू मेरी कुव्वत बन, तूने चुना है। मैं तो अपनी जात में कुछ नहीं था, तूने मुझे बुलाया तो मैं तेरे खेत में आया। सारा मलबा उस पर डाल दे। देखिए कैसे आपकी राहों को साफ करेगा और दलेर करके आपको उठा खड़ा करेगा। इसको जरा मुकम्मल करें। आखिरी 11वीं पढ़ें। बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद हाँ जी और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इज्जत के साथ। आओ जी कादर साहब, चलो जाओ जी, तुझे दुआ नहीं की थी। इज्जत देगा खुदा जो ईमानदारी के साथ उस काम को करेगा जो खुदा ने उसे दिया है। तो फरिश्ते उनको इज्जत के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आसमान की बादशाही में ले जाएंगे। ये फायदा है जो बुलवाए गए हैं उनके लिए। एक तो बादशाही और दूसरी इज्जत भी मिलेगी। तो फैसला आप कर लें कि जो बुलवाए गए हैं क्या आप उस पे कायम हैं, या सिर्फ सारा मलबा पादरी साहब थे कि जो उन्होंने करना, उसके बाद असी कुछ नहीं करना। अपनी जिम्मेदारियां समझे, ये बुलावा है। जब आप चुने गए हैं, खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है, तो आप कोशिश करें, अपने आप को साबित करें। दौड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनाम एक ही मिलता है। जो दौड़ता है, सारे दौड़ोगे, सारे जीत जाओगे। बस अपने बुलवाए जाने पर गौर करके किस लिए बुलवाए गए। जिस दिन आपने अपने बुलावे पर गौर करना शुरू कर दिया, आप जीत जाएंगे। बादशाही तो मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और जिंदगी का ताज भी मिल जाएगा। आमीन। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, वक्त की क्या जरूरत का तकाजा यही है। आए अपने आप को कुर्बान करें।